راہ بنانا کتنا مشکل کام ہے. بہت سارے لوگ کہتے تھے اختر ایمان تم میں وہ کیپیسٹی ہے, تم اتنے پوٹینشیل ہو کہ تم سیاسی جماعت اگر اٹھو گے تو یقیناً ہے کہ بہار میں تم کو پذیرائی ملے گی. لیکن ہم لوگ SIF لے کر اٹھے, ہر کوئی تو واہ واہ کیا ہے, لیکن 4 پیسہ دے کر آپ کی جماعت کو کس نے کامیاب کرنے کا تصور تک نہیں پیش کیا. ایسے وقت میں ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ کس طرح سے کام کیا جائے. اچانک MIM سے ہم لوگوں کا تعلق پیدا ہوا. رمضان المبارک کے دن سے بات ہوئی جناب بیرسٹر سعودی اویسی صاحب سے, اور اس وقت یہ جناب انجینئر آفتاب احمد صاحب, جناب بھائی ڈاکٹر اسلم جاویدہ صاحب, ہم لوگ تینوں دلی پہنچے. اور دلی میں ہم لوگوں نے بہار کی سیاست پر بات کی. اور ابھی بھائی سلیم الحق صاحب کہتے ہیں ارے سیمانچل کے پہلوانوں, ہم تو اگر چمپارن کے پہلوانوں اگر ہم سیمانچل کی بات کرتے ہیں یقین آپ سے کٹنے کی بات نہیں کرتے ہیں. میں تو اکثر کہتا ہوں ماں سب بچے سے پیار کرتی ہے, لیکن جو بیٹا بیمار ہوتا ہے اس سے کچھ زیادہ پیار کرتی ہے. کیونکہ سیمانچل بیمار ہے, سیمانچل کمزور ہے. سارے بیٹا بلا لو, جتنے ان پڑھ, جتنے کمزور, جتنے غریب, جتنے مزدور, جتنے بڑائی کرنے والے مزدور سیمانچل میں ہیں, آپ کے چمپارن میں نہیں ہے میرے بھائی. اس لیے پارٹی نے سیمانچل پر توجہ دی ہے, اور حق بھی یہی پہنچتا ہے کہ جہاں اندھیرا ہو سب سے پہلے وہاں چراغ جلاؤ. بیرسٹر سعودی اویسی صاحب سے ہم لوگوں نے جب ملاقات پیش کی, انہوں نے بہار آنے میں اپنے ارادے کا اظہار کیا, اور ہم لوگوں نے پہلی بار سیمانچل میں جناب بھائی مفتی جاوید اطہر قاسمی صاحب, بھائی عبداللہ ثانی تتلویری صاحب, بھائی ہمارے ابھی پورنیہ کے ہمارے ضلع ادھیکش بھائی ندیم صاحب, یہ تمام تو لوگ اٹھے کہ نہیں ہم لوگوں کو یہاں بڑا جلسہ کرنا ہے. اور تاریخ ساز اجلاس ہوا, رات بھر بادل کی کڑک تھی, موسلادھار بارش ہوئی. وہاں کا جو تاریخی میدان ہے روحی دھاسا میدان, بھائی جناب اشتیاق صاحب پوری کارکردگی کر رہے تھے, اس وقت گھٹنے پر پانی تھا. اور تقریباً لوگ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ لوگوں نے جناب بیرسٹر سعودی اویسی صاحب کے چہرے انور کی دیدار کی اور ان کے حوصلہ مندانہ گفتگو کو سنا. اور جب انہوں نے اس زمانے میں بے روزگاری کے زمانے میں ہم لوگوں نے انجینئر آفتاب احمد صاحب, ہم لوگوں نے عادل حسن ایڈوکیٹ نے مل کر ہم لوگوں نے وہ کام کیا تھا. ہمارے جناب اسلم جاویدہ صاحب نے اس کو پورے ترتیب دیا کہ سیمانچل کی کہانی سرکار یا آنکڑوں کی زبانی. جب بیرسٹر سعودی اویسی صاحب رات کو اس کتاب کو پڑھے تو ان کی پوری گفتگو ہی بہار میں دلتوں اور اقلیتوں کے تعلق سے تھی. اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا اور ہم لوگ اب پارٹی جوائن کرنے جا رہے تھے. میں آپ کو صرف سنا دینا چاہتا ہوں کہ الیکشن 2015 کا نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا. ہم لوگوں کی پارٹی میں بھی شمولیت نہیں ہوئی تھی, اور اس سے پہلے ہی راجد کی طرف سے ہم لوگوں پر جال پھینکنے کی کوشش کی گئی. بار بار کہا گیا آپ آ جاؤ, ہم لوگ جا رہے ہیں راجد جوائن کرنے کے لیے. اس دن ایئرپورٹ پہ ہے, لالو جی کے یہاں سے فون آتا ہے کہ کیوں جوائن کرنے کے لیے جا رہے ہو, آ جاؤ. اختر کے قدم نہیں ڈگمگائے. الیکشن کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا, اب ٹکٹ کا ملنا تھا, اور ادھر سے لالو جی کا اور راجد کے دوستوں نے کہا ہے, لالو جی نے مجھے آفر کیا کہ تم ہمارے پرانے آدمی ہو, سیمانچل کا ٹکٹ تقسیم کرو. میرے بھائی ایک عدد ٹکٹ کے لیے تو پوری زندگانی چلی جاتی ہے. اختر الایمان کو سیمانچل کے پورے ٹکٹ کو تقسیم کرنے کا بھی کی لالچ دی گئی, لیکن اللہ کا شکر ہے اس غریب کے قدم میں کہیں ڈگمگاہٹ پیدا نہیں ہوئی. آج بھی میں کہتا ہوں, ابھی گواہ ہوں گے عادل حسن ایڈوکیٹ, پچھلے 2019 میں بھی ہمیں وہ مرحوم کیا تھے یہ والے احمد پٹیل صاحب نے ہمارے دوستوں سے کوئی بات کی اور کہا کہ کانگریس کے ٹکٹ کے لیے ان کو بلا دو, ہم لوگ ٹھاکر میں تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے میرے قدم میں کوئی جنبش پیدا نہیں ہو سکی. اب کی بار بھی پارلیمنٹ الیکشن سے پہلے کانگریس کی طرف سے, چونکہ اس وقت وہاں کے پارلیمنٹ کے ممبر کی رپورٹ بڑی خراب ہوئی تھی, ہمیں آفر کیا گیا, لیکن اللہ کا شکر ہے قدم میں کوئی ڈگمگاہٹ ہم نے محسوس ہی نہیں کی. اللہ تعالیٰ کتنا کرم اور احسان ہے, چونکہ سیاست میں آنے کے بعد بھی نرم گدے پہ سونے کا عادی نہیں ہوا ہوں, نہ بڑے ہوٹلوں میں دعوت کھانے کا عادی ہوا ہوں, نہ پینے کی عادت لگی ہے. یہ غریب کی زندگی جس طرح جینے کی ہوتی ہے وہ جیتا ہوں, اسی لیے کسی دولت مند کی دولت سے کبھی پریشان نہیں ہوتا ہوں. میرے بھائیوں, میں یہ بات صرف سنا اس لیے رہا, اور میں آج اپنے خدا کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں کہ آج کس لیے ہے پارٹی میں اس وقت پورے ملک میں جو ذلت کی جا رہی ہے, اوقاف کی زمین لوٹی جا رہی ہے, مسلمانوں کی داڑیاں لوٹی جا رہی ہے, ٹوپیاں اچھالی جا رہی ہے, بیٹوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے. اگر ملت غیری آپ کے درمیان میں ہے تو اپنی ملت کی غیرت کے خاطر مسجد کے مینارے نہیں, مندر کے کلش نہیں, اپنے
जमाए बगैर अपनी कौम और नस्लों को इज्जत नहीं दे सकते हो। इसी गैरत को हम जगाना चाहते हैं। अगर इस मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत है, भारत की धरती से मोहब्बत है, तो मैं तमाम लोगों को पैगाम देता हूँ कि जब तक इस वक्त हुक्मरान जमात के दरमियान में अब तो इंसाफ कायम नहीं होगा, हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब जिंदा नहीं रह सकती है। हमारे पूर्वजों का जो मिला जुला समाज था, जो समझता थी, जो सद्भावना था, उसको बरकरार रखना है तो गर्दन कटा करके भी एक सच्ची सियासी जमात को खड़ी करनी है। और ये मायम इसी बात की दावत देती है। और आज मैं अपने खुदा को गवाह करके कहता हूँ कि हम में से क्या है, हम में से बेशतर लोग तो ये हैं कि बैरिस्टर सऊदी अवैसी का जो पैगाम है वो घर घर पहुंचे। इस मुल्क में हमारी एक सियासी जमात हो, असेंबली और पार्लियामेंट में हमारी आवाज बुलंद हो। मैंने बार बार तमसील से कहा है, 70, 80, 90 किलो का इंसान हो, जानू कट जाए, बाजू कट जाए 15, 20 किलो का, लेकिन इंसान जिंदा है। लेकिन गर्दन 4 किलो के वजन की कट जाए तो फिर वो इंसान जिंदा नहीं है, लाश है। जिस जिस्म में गर्दन नहीं वो लाश है, जिस कौम की कोई क़यादत नहीं वो भी मानिंदे लाश है। इस वक्त जो हमारी लड़ाई चल रही है वो यही चल रही है कि हम सब कुछ से सौदा कर सकते हैं, अपने सीने में गोली खा सकते हैं, लेकिन ये सर किसी के सामने में नहीं झुकेगा, बल्कि इस सर की हिफाजत के लिए हम सब कुछ करेंगे। हम इसीलिए एमआईएम को लेकर आगे बढ़े हैं। और आज बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, हाथ देख रहे होंगे। अगर आपने हाथ देखा है इस पार्टी में हम चलेंगे और मकबूलियत है जनाब बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब की, और इसमें हम एमएलए बनने के लिए आए हैं, एमपी बनने के लिए आए हैं, तो मेरे भाई खुदा के वास्ते मैं आपको सलाम करता हूं और पार्टी की तरफ से सलाम करता हूं। यहाँ तो हम इसलिए आए हैं कि कुर्बानी देने की जरूरत पड़ेगी तो कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। और मैं आपको गवाह नहीं रखता, मैं अपने रब्बुल आलमीन को गवाह रखकर कहता हूं कि अगर बिहार में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की बका, इसकी तरक्की के लिए अख्तरुल ईमान को अपने एमएलए की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। उम्मीदवार नहीं बनना अगर जरूरी होगा तो अख्तरुल ईमान कहता है कि अख्तरुल ईमान उसके लिए तैयार है। सिर्फ इसलिए तैयार नहीं है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा, बल्कि अगर मेरे बैरिस्टर सऊदी अवैसी का हुक्म हो कि अख्तरुल ईमान तुम सदर थे कल तक, अब सदर नहीं हो, पार्टी का एक वर्कर हो, जो मेरा उम्मीदवार बनेगा तुम उसके जूते की धागे को बांधने का काम करोगे, तो खुदा की कसम मैं समझता हूँ दूसरी पार्टियों में एमएलए एमपी बनने से मुझे ज्यादा सआदत हासिल होगी कि मैं अपनी पार्टी की क़यादत करने वाले को बात करूं। मेरे भाई किसी जज्बे के साथ हम लोग काम करना चाहते हैं। आज बुलाने का मकसद ये था कि हम इन बातों पर खुलकर बात करें। और अगर पार्टी में रहना है तो पार्टी में वैसे नहीं रहना है। अगर जिला अध्यक्ष आप बने हैं तो अगर आप फसल नहीं बो सकते तो आप धक्का नहीं बन सकते हैं। आप अगर प्रखंडों में कमेटी नहीं बना सकते, अपनी गाड़ी में बोर्ड नहीं लगा सकते, अपने घर पे झंडा नहीं लगा सकते, इसके माने है कि दिल में कहीं चोर है। आप इज्जत तलाश करने के लिए आए हैं, मिल्लत की गैरत, अपनी गैरत के खातिर नहीं आए हैं। इसलिए इस चोर को भगाना है। और आप है, ये 2 महीने का वक्त आपको दिया जा रहा है। आप प्रखंड में उन्हें अपने प्रखंड के अध्यक्ष बनाइए। प्रखंड के अध्यक्ष से देखिए कि वो कितने पंचायतों में अध्यक्ष बना रहे हैं। अभी हमारे औरंगाबाद के साथी कह रहे थे कि 243 में हमको लड़ना चाहिए। हाँ, 10 डिजायर तमन्नाओं से तब्दील नहीं बदलती। आपको अगर लड़ना है तो पार्टी ने एक हदफ अपना तय किया है, वो हदफ भी बड़ा है। आपने तो 10 लाख पर तालियां बजा दी है। अगर आप लोग एक छोटा सा आंकड़ा अचीव करें, हम लोगों ने क्या कहा, एक इलेक्शन जीतने के लिए कम से कम कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? 50,000 लोगों की जरूरत पड़ती है कि आपकी हमायत हासिल हो। और ये वादा है तुम एक अच्छे आदमी होगे तो तुम 10 पर गाली हो सकते हो। तो एक अच्छा आदमी होना तो जरूरी है। तो 50,000 का 10वां क्या है? 5,000। तो 5,000 तो तय करना पड़ेगा ना। तो ये हमारा हदफ इस वक्त 10 लाख और 12 लाख नहीं है। अगर 5,000 के एतबार से हम करें तो 12,15,000 नंबर साथी होती है 243 की। तो हम वो नहीं कहेंगे, हम लाखों में हम नहीं जाना चाहते हैं। हम आपसे यह करना चाहते हैं कि अगर आप आइंदा जिस असेंबली में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आपका हदफ ये है कि कम से कम 5,000 मेंबर वहां होने चाहिए। अगर 5,000 मेंबर नहीं होंगे तो वहां कोई ख्वाब देखने के लिए भी हम तैयार नहीं है। ये पार्टी की का सिद्धांत है जिसका सख्ती के साथ ऐलान कर रहे हैं। इसलिए पार्टी के तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हिदायत दी गई है। आज आपको नामजदगी कराई गई है। अभी आखिर में आपसे आहद भी लिया जाएगा। ये पार्टी अहद व पैमा पर चलती है, आपसे आहद भी लिया जाएगा। अगर आप अपनी कश्ती पे सवार है और कश्ती डगमगा रही है तो दूसरे को फौरन पतवार दे देते हैं, लेकिन पार्टी में कुछ भी नहीं करेंगे।
फिर भी पार्टी का प्रधानमंत्री रहेंगे, ये कश्ती डुबाने वाले लोग हैं, ये कश्ती ही नहीं डूबेगी, डूब के ये भी बर्बाद होंगे। कल उनका नाम यही होगा कि ये कम्बक जब से अध्यक्ष बना था पार्टी को तबाह बर्बाद कर दिया। अपने नाम को बर्बाद मत कीजिए, खुदा के वास्ते काम करना है तो 2 महीने के अंदर में काम कीजिए। पार्टी ने अपना वेबसाइट जो तैयार किया है, उस वेबसाइट में एक बड़ी अच्छी बात आ गई है कि साहब जो एक काम करेगा, जो मेंबर शादी करेगा, उसका रेफरेंस उसमें आ जाता है। तो आप नेताजी, आप कितने पानी में हैं, एक नाप आपके सामने में है कि आपने कितने लोगों को मेंबर बनाया है, या कितने लोगों से आपकी मोहब्बत है कि मेंबर बनाकर आपके मार्फत का हवाला देता है। ये भी एक पैमाना साबित होगा। इसलिए हमारे जो लोग उम्मीदवार बनना चाहते हैं, आसमानों से उम्मीदवार बन के नहीं आएंगे। ये दगाबाज जो लोग आए थे, इन दगाबाजों की जो खैरियत होगी उसके लिए आप काफी है। आवाम भी आज बोल रही है, जिन दगाबाजों ने इज्जत देने वाले की कदर नहीं की, वो किसी आवाम के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। मैं आपको होशियारों का खबर करना चाहता हूँ, इस वक्त देश के आइन की दुश्मन बनी हुई है भाजपा, और इस वक्त वो मुसलमानों की दुश्मन नहीं है, बल्कि वो मुसलमानों की दुश्मनी करके ही सियासत पे आई है। इसलिए वो समझ के मैंने तमसील दिया कि एक बड़े साहब का बच्चा रो रहा था, नौकर को कहा पहला के लाओ, फूल की क्यारियों में ले गया, रंग बिरंगे फूल दिखाया, बच्चा संभल नहीं रहा था, कीमती खिलौने दिए, लेकिन बच्चा रो ही रहा था। अचानक तालाब के किनारे बिल्ली नजर आई और इसके नौकर ने बिल्ली के गले में रस्सी बांधी और पानी में डुबाया उठाया। बिल्ली जब जब परेशान होती थी, गोद का रोता हुआ बच्चा मुस्कुराने लगा और खिलखिलाने लगा। तो जब भी वो बच्चा जब शरारत करे तो माँ यही कहती है नौकर से, खिलौने नहीं, बिल्ली का बच्चा है तो जरा डुबा दो पानी में, बच्चे का दिल बहल जाएगा। ठीक बीजेपी वही काम कर रही है। जब इसका एतबार गिरता है, जब आवाज इसके खिलाफ होती है, कहीं न कहीं से मुसलमानों की दाढ़ियों का, मुसलमानों की मस्जिदों का, मुसलमान के कब्रिस्तानों का ये सौदा करने लगती है, जब यह तमाशा करती है तो देश के मासूम लोगों को गुमराह करती है कि कहीं कुछ न करे। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, बच्चे की नौकरी चली गई, कोरोना में नोटबंदी में हालत खराब हुई, लेकिन मुसलमानों को तो परेशान करता है। तो देश में एक तबका ऐसा भी हो गया है जो अपने मुस्तकबिल को नहीं बल्कि दूसरों की परेशानी से खुश होता है। हमें उन तक भी पैगाम ले जाना है कि मेरे जलने से तुम्हारे दिल में कोई ठंडक नहीं पहुंचेगी, बल्कि मेरा आसिया जब जलकर खत्म हो जाएगा तो दूसरा निशाना तुम बनोगे। जब सामने में जुल्म हो रहा है, चुप बैठे हो, तो अगला निशाना तुम हो। उनको भी हमें बाखबर करना है। इन तमाम और इरादे के साथ आज एक नई ताजगी और नई